کھانے کے لیے ہم نے 40 منٹ کا وقت طے کیا تھا، جو کافی سے زیادہ تھا۔ وہ وقت پورا ہوتے ہی ہمیں ہر قیمت پر جمع ہو کر اس بازار سے روانہ ہو جانا تھا۔ عابد ہم سے الگ ہوتے ہی ایک تنگ سی گلی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ غزالہ سیدھی چل دی، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ غزالہ نے کچھ دور جانے کے بعد ایک معمولی سے ہوٹل کا انتخاب کر لیا۔ میں نے سڑک عبور کی اور دوسری طرف دہی بڑوں اور پکوڑوں کے ایک کیبن کے گرد فٹ پاتھ پر بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ غزالہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے باقاعدہ ڈنر کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا۔ وہ صاف ستھرا کیبن معمولی تھا، لیکن شہر غیر معمولی تھا۔ میں نے جو کچھ منگوایا اس کا ذائقہ بہت لذیذ تھا۔ مجھے بے اختیار کسی کی کہی ہوئی یہ بات یاد آ گئی کہ دہلی کا ہر باسی کھانے کا شوقین اور چٹورا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے دکاندار ذائقوں کا معیار برقرار رکھنے پر مجبور تھے۔ کھانے کا وقفہ میری توقع کے برعکس بہت تیزی سے گزر گیا۔ غزالہ ہوٹل سے نکلتی ہوئی نظر آئی تو میں نے سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس لالا جی کو پیسے ادا کیے اور واپس چل دیا۔ عابد شاید تنگ گلی کی نکڑ پر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کے کار تک پہنچنے سے چند لمحوں پہلے وہ نمودار ہوا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم تینوں کے درمیان خود بخود ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی۔ ذرا سی دیر میں گاڑی دوبارہ سڑکوں پر رواں تھی۔ اب وقت کم رہ گیا ہے، یہ تیزی سے گزر جائے گا۔ غزالہ کو 1 بجے ہم سے الگ ہو جانا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اپنے کاموں کو دہرا لینا چاہیے۔ میں نے سگریٹ کا آخری کش لے کر سلگتا ہوا ٹوٹا کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ 1 بجے پرویز اور عبداللہ دوسری گاڑی میں کرول باغ کی آبادی سے باہر ملیں گے۔ تمہیں کسی ایمرجنسی کے لیے پستول اور آپریٹرز اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اب نے غزالہ کو بتانا شروع کیا، تم یہ دوسری چیزیں لے کر ان کی گاڑی میں چلی جاؤ گی۔ اپنا سفری بیگ اور مظہر کا بریف کیس بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تمہیں اپنے ساتھ لینے کے بعد وہ انل بسواس کے مکان کا ایک چکر لگا کر اس علاقے سے نکل آئیں گے۔ 2 بجنے میں 5 منٹ پر عبداللہ ایک خاص مقام پر بجلی کے تاروں پر لوہے کے نرم اور لچکدار رسے کا لنگر پھینکے گا۔ تاروں میں شارٹ سرکٹ سے زوردار روشن دھماکہ ہوگا اور علاقہ تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ اس دوران میں تم پرویز کے ساتھ گاڑی میں رہو گی۔ عبداللہ کے لوٹ آنے کے بعد تینوں انل کے مکان کے باہر موجود رہنا تاکہ میری اور مظہر کی کارروائی میں کوئی رخنہ نہ ڈال سکے۔ اس کے بعد تم تینوں پیچھے رہ کر ہماری حفاظت کرتے رہو گے۔ نریش کے کام کا انحصار ہم دونوں کی صوابدید پر ہوگا۔ اس مہم میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ غزالہ نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا۔ علاقے کی بجلی اڑانے کے لیے ایک آدمی کافی ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ اب نے کہا۔ غزالہ لاجواب ہو گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا ہوگا کہ کسی تجویز پر معترض ہونا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ متبادل تجویز دینے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ تم نے انل بسواس کے فون کے تار کٹوانے کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اسے یاد دلایا، بجلی اڑانے کے بعد تار کاٹ دیے جائیں گے۔ عابد نے جواب دیا، وہ دونوں دن کی روشنی میں ادھر جا چکے ہیں۔ میرے لیے ٹرانسمیٹر کی کیا افادیت ہے؟ یہ بلا وجہ کا بوجھ بنا رہے گا۔ غزالہ نے کہا، ضروری نہیں کہ سارا کام ہمارے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوتا چلا جائے۔ پولیس کی کسی گشتی گاڑی سے اچانک سامنا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بدترین صورتحال رونما ہو سکتی ہے۔ اگر تم ان دونوں سے بچھڑ جاتی ہو تو دہلی میں تمہارا سراغ لگانا ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے ناگہانی حالات میں تم آپریٹرز پر ہم سے رابطہ کر سکو گی اور ہم تم تک پہنچ جائیں گے۔ ہم تینوں کا ہر حال میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ تم دونوں کو صبح کی پرواز سے دہلی سے نکل جانا ہے۔ عابد کی وہ باتیں کچھ ہیجان خیز تھیں۔ مجھے اپنے خون میں تھوڑی سی حرارت محسوس ہونے لگی۔ علاقے میں اندھیرا کر کے شاید ہم اپنے لیے دشواریاں پیدا کر لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری انل بسواس تک رسائی مشکل ہو جائے۔ عابد کے بنائے ہوئے منصوبے پر غور کرنے کے بعد میں نے دھیرے سے کہا، اندھیرے میں غلطی کا زیادہ امکان ہوگا۔ رات کے 2 بجے دیوار کود کر اس کے گھر میں گھسنا آسان کام نہیں ہے۔ اجالے میں کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں بے موت مارے جائیں گے۔ انل بسواس کے گھر سے باہر منڈلانے والا وہ خطرہ اندر پیش آنے والی دشواریوں پر حاوی تھا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ عابد کو یاد آیا کہ ہمارے ہوائی سفر کے ٹکٹ اسی کے پاس تھے۔ اس نے اپنی جیب سے دونوں ٹکٹوں کا لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اگر بدقسمتی سے میں مارا گیا یا پکڑا گیا تو اب تم دونوں کی روانگی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ تم کسی نہ کسی طرح بر وقت ایئرپورٹ ہی پہنچ جاؤ گے۔ ایسے منحوس کلمات منہ سے مت نکالو، غزالہ نے تادیبی انداز میں کہا۔ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی بھی آ جاتی ہے۔ عابد نے زبردستی ایک ہلکا سا کہہ لگایا، تم بھابھی ہو کر بھی اندر سے ایک وہمی عورت ہو۔ سچ یہ ہے کہ عورت عورت ہی رہے تو اچھی اور باوقار لگتی ہے۔ اس وقت تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب میں کوئی منفی بات نہیں سوچوں گا۔ عابد نے اپنی گاڑی کی پیٹرول کی ٹنکی بھروائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر ہلکی اور درمیانی رفتار سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ سڑکیں ٹریفک سے خالی ہو چکی تھیں۔
खाल खाल ही कोई गाड़ी या टैक्सी वगैरह तेजी से आती या जाती हुई नजर आ जाती थी। अब हम अपनी मतलूबा सड़क पर आ गए हैं। 1 बजने से चंद सानियों पहले आबिद ने ऐलान किया। इस वक्त उसकी गाड़ी एक कुशादा सड़क पर दौड़ रही थी। फासले तेजी से सिमटते रहे, फिर आबिद को वो सुर्ख गाड़ी नजर आ गई जिसमें उसके साथियों को उससे मिलना था। उसने रफ्तार कम कर दी। आबिद की गाड़ी बस लम्हा भर के लिए सुर्ख कार के पीछे रुकी। गजाला तैयार थी। गाड़ी थमते ही नीचे उतर गई और आबिद ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। सुर्ख गाड़ी गजाला के सवार होने के इंतजार में वहीं खड़ी रह गई। मैं मुड़कर दूर तक उसका जायजा लेता रहा और फिर सड़क के घुमाव के साथ वो मेरी नजरों से ओझल होगी। अगर तुम्हारा प्रोग्राम वही है जो तुमने अभी बताया था तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुमने गजाला को दूसरी गाड़ी में क्यों मुंतकिल कर दिया। वो हमारे साथ रहती तो ज्यादा बेहतर होता। काम पूरा होने के बाद तुम जरा सा भी वक्त जाया किए बगैर हमें एयरपोर्ट पहुंचा सकते थे। अब तुम्हें एक मरतबा फिर कहीं ना कहीं रुक कर गजाला को वापस इस गाड़ी में लेना होगा। काम होता चला गया तो मैं एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं रुकूंगा। दोनों गाड़ियां एयरपोर्ट जाएंगी और तुम दोनों को वहां छोड़कर लौट आएंगी, उसने कहा। फिर भी ये रद्दो बदल मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कह डाला, तुमने ये फर्ज कर लिया है कि सब कुछ इसी तरह होता चला जाएगा जैसा सोचा गया है। ये सोचो कि जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। गजाला इस गाड़ी में अकेली होगी, उसे शहर के रास्तों का इल्म नहीं है। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसे हर हालत में ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो गड़बड़ होने की सूरत में उसे करोल बाग की भूल भलियों जैसी आबादी से निकालकर एयरपोर्ट या किसी और महफूज मकाम तक पहुंचा सकें। मैंने इस बात को शुरू से आखिर तक ध्यान में रखा है, हर कदम नाप तोल कर उठाया है। तुम्हारा ख्याल है कि कोई गड़बड़ हुई तो सुर्ख गाड़ी के तीनों सवार महफूज रहेंगे, मैंने पूछा। महफूज रहना या ना रहना बाद की बात है, इस मुकद्दर की यावरी का बहुत दखल होता है। मैंने ये बात मद्देनजर रखी है कि वो बाहर निस्बतन बेहतर हालात में रहेंगे। बात बिगड़ जाए तो इन्हें वहां से फरार होने का मौका भी मिल सकता है। वो हमारे और अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने उसे हर तरह से हिला जुला कर देख लिया, लेकिन वो अपनी जगह डटा रहा। उसके किए हुए फैसलों में कहीं कोई झोल नहीं था। उसने हर पहलू पर गौर खोज करके राह के 2 अहम अफसरों पर शब खून मारने का मंसूबा बनाया था। उसे किसी रद्दो बदल के लिए कायल करना आसान नहीं था। बातों बातों में उसने बताया कि उसके इस्तेमाल में मौजूद गाड़ी किराए की थी जो एक फर्जी नाम पर ली गई थी। हथियारों के थैले के सिवा उसने ये एहतियात रखी थी, इस गाड़ी में ऐसी कोई चीज न रहे जो उसकी या उसके साथियों की शनाख्त में मददगार साबित हो सके। मुद्दा यह था कि हालात बिगड़ने की सूरत में हम दोनों गाड़ी की परवाह किए बगैर वहां से निकलकर पैदल ही किसी तरफ फरार हो सके। किसी गोशाए आफियत में पहुंचने के बाद हम ट्रांसमीटर पर एक दूसरे से राब्ता कर सकते थे। वो एक तरह से आबिद अली का शहर था, इसलिए इस रात की मंसूबाबंदी का बेशतर बोझ उसने खुद संभाला हुआ था। शायद उसने अपने औकात कार के बारे में कई मरतबा रिहर्सल कर ली थी, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ रास्ते से दोबारा करोल बाग की हदूद में दाखिल हुआ तो 2 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। हमारी गाड़ियां अनिल बिस्वास के घर से दूर थीं कि अचानक कहीं एक जोरदार धमाका हुआ। फिजा में लम्हे भर के लिए शोलों की खून आशाम सुर्खी उभरी और फौरन मादूम हो गई। हमारे आसपास के मकान बदस्तूर रोशन थे। अब्दुल्ला बिजली के तारों पर अपना काम दिखा चुका था, मगर मैं हैरान था कि कुर्बो जवार के मकान क्यों रोशन थे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। धमाके के बाद आबादी को अंधेरे में डूब जाना चाहिए था। मैंने तशवीश का इजहार किया, शायद इस इलाके की सप्लाई किसी और लाइन से है। आबिद ने राय दी। गाड़ी चल रही थी। अगले लम्हे आबादी का तारीकी में डूबा हुआ हिस्सा हमारे सामने आ गया। मैंने तेजी से डैशबोर्ड का खाना खोलकर इसमें रखी हुई 2 टार्चें निकाल ली। पिस्तौल, फाजिल मैगजीन और शिकारी चाकू पहले ही हमारी जेबों में मुंतकिल हो चुके थे। मुझे महसूस हो रहा था कि इस मुहिम के लिए हम दोनों जरूरत से ज्यादा मुसल्ला हो चुके थे। आबिद ने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाते ही हेडलैम्प्स बुझा दिए। हम अनिल बिस्वास के घर के सामने पहुंच चुके थे। मुझे सुर्ख गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो लोग अपना काम पूरा करने के बाद कहीं आउट में छुपे हुए थे ताकि इत्तिफाकी तौर पर उनकी मौजूदगी का राज फाश ना हो सके। गाड़ी रुकते ही हम दोनों नीचे उतर गए और दरवाजे मुकफ्फल किए बगैर अनिल बिस्वास के मकान के अहाते की दीवार की तरफ बढ़ गए। इस आबादी का बेशतर हिस्सा गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। बंद घरों की दरो दीवार में सोए हुए मकीन शायद बर्की शॉर्ट सर्किट का धमाका सुनने से कासिर रहे थे। कहीं भी नकलो हरकत के कोई आसार नहीं थे। मैंने दीवार के साए में रुककर लम्हा भर के लिए आबिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में सफेद और स्याह ढेले तारीकी में चमक रहे थे। मेरी तरह वो भी दीवार फांदने से पहले अंदर के सुनगुल लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने उछलकर दीवार के ऊपरी हिस्से पर हाथ जमाए और फिर अपने वजूद को ऊपर समेटना शुरू कर दिया। मेरी भरी हुई जेबें इस वक्त एक बोझ महसूस हो रही थी।
मगर अपने लादे हुए इस बोझ से निजात हासिल करना मुमकिन नहीं था। मैं जोर सर्फ करके दीवार पर पहुंचा और पल भर में दूसरी तरफ कूद गया। मैंने अपने जूतों के नीचे पुख्ता फर्श के बजाय मिट्टी की नरमी महसूस की थी। मैं जमीन पर अकड़ों बैठा हुआ था कि मेरे करीब ही धमक की आवाज पैदा हुई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो मेरे पीछे आबिद भी अंदर कूद चुका था। वो बिजली उड़ाने के बाद मुहिम का पहला मरहला था जो खैर खूबी से मुकम्मल हो गया था। अनिल बिस्वास के अंधेरे में डूबे हुए मकान पर गहरा सकूत तारी था। कहीं से किसी नकलो हरकत की आवाज नहीं आ रही थी। हमारी पेशकदमी के लिए मैदान साजगार था। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि आबिद ने अपने जराए से बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन इस घर की अंदरूनी साख्त के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था। इस शब खून के आगाज से पहले आबिद ने कमान संभाली हुई थी, लेकिन अमली कार्रवाई का आगाज होते ही वो पीछे हो लिया था। अंदर से तारों की छाव में ये नजर आ रहा था कि अहाते और इमारत की दीवारों में खासा फासला था। मैंने अंदाजा लगाया कि इस 4 नफरी खानदान के तीनों मुलाजमीन अहाते में बने हुए सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहते और सोते होंगे। अगर वो तीनों गहरी नींद सोए हुए थे तो इनके आराम में खलल अंदाज होना मुनासिब नहीं था। मैंने हाथ से आबिद को इशारा किया और पंजों के बल दौड़ता हुआ एक ही सांस में उस इमारत के साए में पहुंच गया। दीवार के साथ लगे लगे मैंने सिरकते हुए दाखिली रास्ते तक रसाई हासिल की। वो बंद था। मैं तेजी से आगे बढ़कर बगली दीवार की तरफ हो लिया। कुछ आगे बढ़ते ही मुझे मकान के पिछले हिस्से में अहाते की दीवार के साथ बने हुए 2 कमरे नजर आ गए जो मुलाजमीन ही के इस्तेमाल में हो सकते थे। बगली दीवार की पहली 2 खिड़कियां बंद थीं। तीसरी खिड़की के पट खुले हुए नजर आ रहे थे। मैं रुके बगैर वहां पहुंच गया। इस खुली हुई खिड़की में जाली के पट अंदर से बंद थे। घर में मक्खियों और मच्छरों का दाखला रोकने के लिए फ्लाई प्रूफिंग जरूरी थी। मैंने जालियों में से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ फैली हुई गहरी तारीकी की वजह से कुछ देखने में कामयाब नहीं हो सका। मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी की ख्वाबगाह है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। अंदर घुसे बगैर मकसद हासिल होना मुमकिन नहीं था। मैंने गर्दालूद जाली पर हाथ लगाया तो वो नायलून की बजाय किसी धात की महसूस हुई। मैंने पतलून की बाईं जेब से आबिद का लाया हुआ चाकू निकाल कर खोल लिया। जाली का एक हिस्सा चाकू के नोक से काटने में खासी आवाज पैदा हुई। रात के गहरे सन्नाटे में एल्युमिनियम के तारों के कटने की वो आवाज आसानी से किसी की नींद में खलल अंदाज हो सकती थी। मैंने मजीद जाली काटने के बजाय अंदर हाथ डाल दिया। जरा सी कोशिश के बाद चटकनी तलाश करने और खोलने में कामयाब हो गया। जालीदार पट के कब्जे बेआवाज थे। पट खुलते ही मेरे दाखिले का रास्ता पैदा हो चुका था। मैंने सर ऊपर करके अंधेरे में नजरें काट दी। वो एक बड़ा कमरा था जहां 2 कुशादा मसैरियों पर निस्वानी हेवले महवे ख्वाब नजर आ रहे थे। मैंने ये नतीजा अखज करने में देर नहीं की कि वो अनिल बिस्वास की बेटियों की ख्वाबगाह थी। वह चढ़ती हुई जवानी के खुमार में डूबी हुई गहरी नींद सो रही थी। मैं खिड़की से गुजरकर कमरे के फर्श पर उतर गया जो दबीज कालीन में छुपा हुआ था। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि इन मासूम लड़कियों से कोई छेड़छाड़ किए बगैर मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि वो बाद में किसी खटके से बेदार होकर हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकती थी। इनका बेहोश हो जाना हमारे हक में बेहतर था। मेरा अंदाजा था कि इस घर में खिदमात अंजाम देने वाले तीनों मुलाजमीन बैरूनी कमरों में पड़े बेखबर सो रहे थे। घरों में मौजूद मोबाइल फोन या किसी दूसरी मवासलाती सहूलत को सिर्फ अहले खाना इस्तेमाल कर सकते थे। 2 लड़कियां हमारे सामने सो रही थीं। इन्हें बेहोश करने के बाद घर में अनिल बिस्वास और उसकी बीवी रह जाती। अनिल के बारे में हम खून आशाम अजाइम के साथ इस घर में दाखिल हुए थे। इसे ठिकाने लगाने के बाद या इससे पहले इसकी बीवी को भी बेहोश कर दिया जाता तो हमारे सरों पर मंडलाता हुआ यह खतरा टल जाता कि अनिल के कत्ल की इत्तला नरेश शर्मा को मिल जाएगी और वह हमारे पहुंचने से पहले होशियार हो चुका होगा। मैं पंजों के बल चलता हुआ मसैरी के करीब गया। इस पहली मसैरी पर लेटी हुई लड़की के पैर हल्के कंबल में लिपटे हुए थे। मैंने उंगली में पड़ी हुई अंगूठी के खोखले नगीने का रुख हथेली की तरफ घुमाया और फिर वो हाथ मजबूती से लड़की की नरम पिंडली पर जमा दिया। पिंडली पर मेरी गिरफ्त के दबाव से नगीने में पोशीदा माइक्रो सिरिंज के जरिए सरीउल असर स्याल लड़की के जिस्म में सरायत कर गया। उसने सोते सोते एक तेज झुरझुरी ली। लम्हे भर के लिए मैं खौफजदा हो गया कि शायद वो स्याल के असर अंदाज होने से पहले मेरे हाथ का लम्स महसूस करके जागने वाली थी। तो बेदार हो जाती तो अपने कमरे में 2 अजनबी सायों को मौजूद पाकर दहशत से चीखना शुरू कर देती और हमें वहां से उल्टे पांव भाग जाना पड़ता। जरा से इंतजार ने मेरे खौफ को बेबुनियाद साबित कर दिया। झुरझुरी लेने के बाद लड़की का बदन साकित हो गया था। अव्वल खान का दिया हुआ तोहफा इस नाजुक मौका पर बेमिसाल अंदाज में मेरे काम आ रहा था। आबिद मेरे करीब खड़ा वो सब कुछ देख रहा था।
लेकिन उसे मेरे पास मौजूद अंगूठियों का राज मालूम नहीं था। बार बार आंखें फाड़ने के बावजूद वो कुछ समझने में कामयाब नहीं हो सका। एक लड़की की बेहोशी की तरफ से मुतमईन होकर दूसरी मसहरी की तरफ मैं बढ़ा तो आबिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तुम इनके पैर क्यों पकड़ रहे हो? वो मेरे कान के नीचे सरगोशियाना आवाज में मनमनाया। कोई लड़की उठ गई तो कयामत खड़ी कर देगी। मैंने शहादत की उंगली होंठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर अंगूठी वाले हाथ से दूसरी लड़की का दाहिना पैर थाम लिया जो पांती की तरफ मेरे करीब था। पैर की जिल्द को छूते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तलवे की सख्त जिल्द में स्याल का एक कतरा उतारने के लिए सख्तर गिरफ्त की जरूरत थी। मैंने लड़की के पैर पर अपने हाथ का दबाव जालमाना हद तक बढ़ा दिया। वो भी आंखें खोले बगैर धुंधलकों की उसी दुनिया में पहुंच गई जहां उसकी बहन पहले से मौजूद थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये दोनों बेहोश हो चुकी हैं। मैंने नीची आवाज में आबिद को बताया। मगर कैसे? तुमने इनके पैर और पिंडली पर क्या अमल किया है? मेरी कार्रवाई के सहर में गिरफ्तार होकर वो ये भूल बैठा था क्या मैं अनिल बिस्वास की तलाश थी। ब्राह्मण की कवारी कन्या के चरण छू लिए जाएं तो वो लाज से बेहोश हो जाती है। आओ आगे चलो, मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहा। अनिल बिस्वास के घर में आसानी से घुस आने के बाद मेरे एतमाद में बेपनाह इजाफा हो चुका था। वो मुहिम यकायक मुझे बहुत सहल नजर आने लगी थी। 2 खाली कमरों का सरसरी जायजा नाकाम रहा। एक ड्राइंग रूम था, दूसरा सोने का कमरा था मगर खाली था। घर में हर तरफ गहरे अंधेरे का राज होने की वजह से मुझे संभल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। कमरों का जायजा लेते हुए भी मैंने टार्च इस्तेमाल नहीं की थी। जब तक इस घर में अनिल बिस्वास जिंदगी के सांस ले रहा था एहतियात जरूरी थी। तीसरे तारीख कमरे में घुसते ही मेरा दिल खुश हो गया। मसहरी पर शब ख्वाबी के कपड़ों में मलबूस 2 साए एक दूसरे के जिस्मों पर हाथ रख के बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। इस कमरे की फिजा में रची हुई खुनकी और मखसूस बू से अंदाजा हो रहा था कि बिजली उड़ने से पहले कमरे का एयर कंडीशनर चलता रहा था। अनिल अपने मुल्क, अपने शहर और सबसे बढ़कर अपने घर में था। वो दरिंदा सिफ्त, सफाक और बेगैरत शख्स ये सोच भी नहीं सका होगा कि मैं उसकी बू पर लगकर उसकी ख्वाबगाह तक पहुंच जाऊंगा। वो बेखबरी और इत्मीनान की गहरी नींद सो रहा था। दूसरों के आराम और सुकून को तहस नहस कर देने वाले शख्स की वो बेफिक्री मेरे लिए काबिल रश्क थी। उसने गजाला के साथ जो बदसलूकी की थी इसका होलनाक इंतकाम लेने के लिए उसके घर में 2 जवान और शायद खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। मगर मैं जोश इंतकाम में अपनी सतह से गिरकर अनिल बिस्वास के गंदे मकाम तक नहीं पहुंच सकता था। उसकी बेटियां उसके जराइम में शरीक नहीं थीं और मैं राह का कोई भेड़िया नहीं था जो बाप के करतूतों की सजा उसकी बेटियों को देने पर तुल जाता। अनिल बिस्वास और उसकी बीवी के सोने का अंदाज बहुत वालिहाना था। अधेड़ उम्री के आखिरी मरहलों से गुजरते हुए भी अनिल अपनी खानगी जिंदगी में खलूस और वफा का पैकर नजर आ रहा था। इसकी सारी बेरहमी और सफाकी अपने घर से बाहर वालों के लिए थी।